मेरी बात ना हो। हाँ तो बस ठीक है, हाँ फिर उनका 1000 भी तो वाह मैं कर जट लूंगा। साहब वाह। हाँ यकीन करें जट साहब, अगर बंदे के अंदर थोड़ी भी शर्म बाकी हो ना तो खुद ही माइक बंद करके बस खामोशी इख्तियार कर ले। लेकिन क्या इस उम्र में मैं आपको बताऊं, एक नुस्खा ही दे सकता हूं जिस उम्र में आप हैं। निहार मुंह गधे हाँ, की दुम पर मैं मक्खन लगाकर चूसें, आपके दिमाग तेज होगा, अफाका ज़रूर होगा। इस नुस्खे पे अमल कीजिए। और बहुत ज़रूरत से और आपकी हैसियत से बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया अहमद जट साहब ने आपको। अब अगर आपके अगले कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। जट साहब का मूड हुआ और आपकी खुशनसीबी हुई तो आप जवाब आपके मुंह पे मारेंगे। टवाना जी कोई और बात? डेविड भाई आप कुछ बात करना चाह रहे थे? ये नहीं नहीं, मेहरबानी। हम कहते हैं कि पत्थर मारोगे तो चींटे पड़ेंगे, रहने को। माशाल्लाह ताबेदार देखो कितना है। माइक बंद नहीं किया अना की वजह से, लेकिन बोला फिर भी नहीं। डर है अहमद जट साहब, कुछ भी बोलो दहशत तो है ना आपकी। नहीं, गल सुनो, मूसा साहब ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੋ, कोई नहीं मसला। मूसा भाई मैं बड़ी देखो प्यारी। अहमद साहब, मैनू पता है तुसी अच्छा ਉਹਦੀ जैसे साइड ही ਲੈ ਰਹੇ आपने ਹੋ, इजाजत दी लेकिन फौरन बोल पड़ा। मैं देखो मैं देखो चेक करो चेक ਤੁਹਾਨੂੰ करो। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇhtiyat गुट ਕਰੋ। टारगुट मूसा नहीं कर भाई रहे हो, मैं टारगुट। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨੋਟਿਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰ। ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਇਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਇਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੂਸਾ ਭਾਈ ਇਹ ਆਇਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਫਿਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਇਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਵੀ ਦੱਸੋ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਨਾ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਦੇਖਾਂ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਦੱਸ ਦੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਇਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਾਂ। ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸ਼ਰੀਅਤ ਪਰਸਨਲੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣੇ ਆ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ वैसे ਠੀਕ ਹੈ। मूसा साहब, एक मशवरा है कि अगर अपनी पूछ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਡੇਵਿਡ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਘੁੰਮਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਛ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਫਾਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਛ ਜਿਹੜੀ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਪੁੱਛਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਪੁੱਛਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਇਹ ਸੀਸੀਟੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਥ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ, ਟਾਪੇ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆ ਪੁੱਛ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛ ਕੱਢ ਦਵਾਂ। ਇਹ ਟਵਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, क्योंकि मैं तो इस क्या लफ्ज यूज किया मैंने बताओ? वो उसके नहीं ना समझ क्या में आए। लफ्ज यूज किया मैंने बताओ? बहरहाल मैं बेहतर यही यार करता भाईजान, हूँ। जिस उम्र में आपको पोते पोतियां खिलाने हैं, आप यहाँ पे आके मर्दों तू मर्दों मेरे के साथ जो है आजाद से खेल रहे हैं। खुदा का खौफ गुल्ली करे डंडा मूसा खेलता साहब। रहा है, मेरी उम्र जानता है। तू भी गुल्ली डंडा खेलता रहा है मेरे साथ, तेरे जैसे मुलाजिम है 4 मेरे अंडर काम करते हैं। मूसा भाई यकीन करें ਤੁਹਾਡਾ यार, ਬਿਜ਼ਨਸ यही ਬੜਾ ਹੈ। बात है। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਓ। आ जाओ ले लो। ਪੰਜਵਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਟਵਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਵੋ, ਜਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਬਰੋਡਾਂ ਦੇ। ਚਲੋ ਟਵਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ मैं ਕੈਨੇਡਾ ते ਦਾ गरीब ਵੀਜ਼ਾ जिहा ਲੱਭ बंदा ਜਾਏ। भाई, मैं ते इत्थे वड्डी वड्डी नहीं छड्डना, सीधी जी गल है। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਦਈਏ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੂਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? मनु मौत कबूल है, लेकिन यार यकीन करो मनु यह कबूल नहीं है। ਹੈਲੋ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਬਲ ਤੁਹਾਡਾ मैं ਪੰਜਵਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ यकीन ਬਣਾਉਣ। करो, मैं जो भी बंदा गैरतमंद हाँ, खुदा दी कसमें मैं एक कम नहीं कर सकना यार। ना ਟਵਾਣਾ ਤੂੰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬਰੋਡ ਦੇ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। खुदा दी कसमें अगर तू मेरे सामने होए तो मैं तेन गैरत विखावा। ਤੂੰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਬਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਟਵਾਣੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਨਾਲ ਟਵਾਣੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮੁਹੱਬਤ function ਆ, ਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਟਵਾਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਈਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਲਿਆਈਦਾ ਤੂੰ ਇੱਧਰ। ਅਹਿਮਦੀ ਆ, ਨਾ ਤੂੰ बिल्कुल। ਅਹਿਲ ਸੁन्नत ਆ, ਨਾ ਤੂੰ ਵਹਾਬੀ ਆ।
ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂ ਦੱਸਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਰੋਡ ਦੇ ਲੈਣ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਰਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੂਸਾ वो- ਸਾਹਿਬ ਮੂਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਹੈ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰਕੇ 'ਚ ਗਏ ਹੋ? हाँ अपना फिरका दस दे, दस ਕੱਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੂੰ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਕਬਰ ਦੀ नहीं ਕਰਾ नहीं ਰਿਹਾ। इन्नू मौत पै जाएगी डेविड साहब, ये फिरका ਮੂਸਾ नहीं ਸਾਹਿਬ दर्शन लगा, ਤੁਸੀਂ इन्नू ਕਿਸ मौत पै ਫਿਰਕੇ 'ਚ ਗਏ ਹੋ? दसो। ਮੈਂ ਜੰਬਾ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਤੇ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਦੇ? ਤਿੰਨ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। जियो ਉਹ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜੰਬਾ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਾਵਡ ਭਾਈ, ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸੀਟ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਯਾਰ ਸੱਚ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਬਰਾਈਲ ਸੱਚ। ਚਲੋ ਜੀ ਖੈਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੂਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਗੱਜ ਚੁੱਕੋਗੇ ਢਿੱਡ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਟਵਾਣਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਰੋਡ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੂਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੈਠੋ ਗਏ ਜੀ, ਯਾਰ, ਹੋ ਗਏ ਮੂਸਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ओके सर ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੂਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ जाओ। ओ गए जी मुझसे। ये जो टवाना भाई नीचे जो फैजान नाम की आईडी है, ये वही है जिनको प्रसाद मिलता है आपके साथ? हाँ ये मेरा भाई है, ये मेरे अच्छा साथ अच्छा ठीक है, उनको क्या रिक्वेस्ट डालें हम ऊपर उठा लेते हैं। फैजान आता है ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗਿੱਧੋਂ ਦੀ ਪੂਛ ਉੱਤੇ ਮੱਖਣ ਲਾ ਕੇ ਚੂਸੋ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ। हाँ निहार मुंह अरे बराट ते जाके एक को सवाल एक की गलना फालतू जी गलना। बुजुर्ग बंदा है भैं, अपनी उम्र वाले वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। सब भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। सीसीडी साहब जो टोना साहब नहीं है, ये मेरे दोस्त हैं, बड़े पुराने हैं, अच्छा अच्छा बहुत पुराने दोस्त हैं। ट्विटर पे ना ये टोना साहब को समझते ही नहीं है। टोना साहब ਮਤਲਬ ਸਾਬਰ ਸਾਈਡ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੀਏ। नहीं, ये जो अहमद भाई जो टोना साहब नहीं है, ये ऐसे बंदे हैं कि गुस्सा इनको आता नहीं है, दूसरे बंदे को गुस्सा दिला के ना वो बंदा बराड़ छोड़ के भाग जाता है। ਤੁਹਾਡੀ ये ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਐਕਸ ਤੋਂ, वालेकुम सलाम। ਉਹਦੀ बहुत ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ कि ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ जी ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। जट साहब को बुरा लगता है यहाँ पर सिर्फ अगर बात करना तुम्हारा भाई, एक सेकंड। सिर्फ जट साहब सीसीडी की साहब बात मैंने करें। गूगल में डाला ये वाला आपका सेंटेंस जो है ना, अच्छा कि इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, तो वहां से आंसर आया, इफ यू वांट टू फोल्ड माय फोल्ड इट। नहीं ये अपना अफजल वड़ाइश साहब इसकी ट्रांसलेट, अच्छा ये फैजान साहब आए, इनसे पूछ लेते हैं। फैजान साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है यार? क्यों अफजल अल्हम्दुलिल्लाह। साहब को आज आपने वो अच्छा फैजान साहब आप पहली दफ़ा आए हमारी ब्रॉड पे, आपका वेलकम है। तो Thank you. आपको इंग्लिश आती है, मैंने सुना है आपको कई दफ़ा वहाँ पे। तो यार, इतनी नहीं आती। आपसे एक सवाल है मेरा। ये हमारे यहाँ पे हैं एक मुजद्दद हैं टिकटॉक पे, मौलाना हाफिज़ मुफ्ती आज़म मोहम्मद अफजल वड़ाई साहब, शायद आप जानते हैं उनको ना? बिल्कुल जानते हैं जी, हमारे तो वो रहबर और उनका- रहनुमा हैं। हाँ बिल्कुल। आप वैसे ही मैं बता दूं या उनकी एक ऑडियो मैं आपको सुनाऊं, तो फिर आप मुझे उसकी ना थोड़ी ट्रांसलेट कर दें, कुछ लफ्ज़ों की ना मुझे समझ नहीं आई उनकी। ठीक है आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है, मैं आपको वो सुनाता हूँ, ठीक है? ठीक है, सुनाए। सारी वीडियो सुनना पसंद करेंगे या सिर्फ वो जो लफ्ज़ नहीं, जिनका मैं तर्जुमा वो चाहता हूँ? सुनाए। नहीं आप सारी सुनाए, यहाँ इनको अंग्रेजी आती है, ये पूरी वीडियो की ट्रांसलेशन। एक मिनट सब्र करो यार, की हो गया। अच्छा जी म्यूट कर लें प्यारे भाई सारे। You have been abusing Muslims since 2 and 3 weeks. Otherwise, you are the fucking motherfucker. You are the dickhead motherfucker. You are a big asshole.
removes these terrorists from this panel. Party yourself, remove this. It is true, very true, very true. You are facilitator of the Qadianiyat. You are Nana's religion, Qadianism, at this broad, at this TikTok. You are the facilitator. Who are you? Who are you? इसकी मैं सारी निकालता हूँ. Let them speak. Sister Uma, let them speak for the record, okay? Let them speak. Challenge let them speak. गलत इंग्लिश ना बोल. गलत इंग्लिश ना बोल. ज़्यादा ड्राइवर, let them speak for the record. Yeah. ड्राइवर भी नहीं है. Harassing. These are harassers. Showing ऊपर चला दी ऊपर. Anything happen to me and my family, these terrorists will be responsible. ये ऐसा बेगैरत इंसान है. सिंधु इतना घटिया इंसान है कि इसको इंसान भी बंदा नहीं कह सकता. सिंधु एक इतना बेशर्म कोई जानवर है. बेगैरत जहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ कोई काम हो रहा तो मेरा ये ले जी फैज़ान साहब, ये जो आखिरी लफ्ज़ बोले गए ना, ये मैंने ऊपर पोस्टर भी लगाया हुआ, तो मेहरबानी करके हमें थोड़ी सी इंग्लिश इनकी ना और ट्रांसलेट कर दें थोड़ी. यार इसका ट्रांसलेटर बेहतरीन यहाँ पे मौजूद है. रॉन्ग नंबर टॉक्स और नहीं कर सके ना, वो फेल हो गए हैं, वो फेल हो गए हैं. अच्छा, हाँ जी, वो फेल हो गए. पुट इट माइन विच यू वांट टू पुट. ये नीचे मुफ्ती एबीआर साहब आए, ये अच्छा पुटते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों. सॉरी यार मैं अवे था. क्या हाल है सब भाइयों के? कैसे? अच्छा जी, अफजल बड़ाई साहब खुद ही नीचे अली नाम की आईडी से आप उनके ट्रांसलेट कर रहे हैं. तो जब ये लड़ रहे थे तब ये पंजाबी में गालियां दे रहे हैं. सारी इंग्लिश बोल गए और गालियां पंजाबी में दे रहे हैं. अच्छा, पंजाबी में से में बंदा इजी होता है ना शायद इसलिए. पुट का लफ्ज़ जो है ना वो पुट में ही रहेगा इंग्लिश में भी. उसके अलावा इसका ऑप्शन ही ये है कि ये इंग्लिश में भी जाके पुट ही रहे. मेरा ख्याल है एआई से भी पूछ लेते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, वो ही बताएं इसकी ना ट्रांसलेट, वो ही करें. अगर अफजल बड़ाई साहब आप नीचे हैं, वैसे तो आप बुक्कल मार के बैठे हुए हैं मुझे पता है, तो आप भी इसकी ट्रांसलेट कर सकते हैं. की किसी हद तक ठीक है कि कई वर्ड की जो ट्रांसलेशन अगर कर दे ना तो वो ट्रांसलेशन बनती नहीं है. जैसे क्रिकेट की दुनिया में एक दूसरा, वो इंग्लिश में भी वही चलता है, उर्दू पंजाबी में भी वही चलता है, क्योंकि कई वर्ड की ट्रांसलेशन आप इट्स वेरी हार्ड कि आप उनके वो मीनिंग दे सकेंगी ट्रांसलेशन. तो अफजल साहब पुटने की बात कर रहे हैं ना, मुफ्ती एबीआर साहब वही पुट हैं. तो इन्हें अगर आप यकीन करें कि अगर आप इन्हें माइक पुट कर दें तो ये अपने बारे में खूब बता देंगे कि इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं. माशाल्लाह माशाल्लाह, ये पक्के मुजाहिद हैं फिर. ओहो सीसीडी साहब ऐसे वैसे. ताहिर भाई आप भी ऊपर आ जाएं, नीचे बैठे हुए हैं आप. ये साला अभी सो गया. आप भी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो आप भी आके ट्रांसलेट कर सकते हैं. अच्छा यार, जी जी, सुबह मैंने सुना था आप कुछ ब्राड लगी हुई थी आपकी, लेकिन फिर मैं ऊपर आना चाह रहा था, मैं नहीं आया. मैंने कहा चलो यार फ़ायदा नहीं है. मैं जिस ब्राड पे गया हूँ हर तरफ मुझे खून की होली नजर आई है. पहले हमारी ब्राड पे चलती रही, मतलब हमारी आपस की, अब इधर भी यही काम शुरू हो गया है. तो ये सिलसिला कब तक चल रहा है यार? नहीं हमारे प्रो पे तो कुछ नहीं, हम तो सिर्फ ट्रांसलेट कर रहे हैं कि बता दें, हमें इल्म में इजाफा चाहते हैं हम. ये तो अभी कर रहे हैं ना. सुबह कल की बात कर रहा हूँ, उसमें असल में कल जब ये होली वोली खेली गई है ना, तो मैं सोया हुआ था. मुझे तो किसी ने फ़ोन करके बताया कि भाई आपकी ब्रॉड पे यहाँ पे होली खेली जा रही है. और जब तक मेरी आंखें खुली हैं तब तक होली जो है ना उसका प्रोग्राम ख़त्म हो गया था. अच्छा. देखें, या आपकी तरफ से हो या हमारी तरफ से हो, पानी एक ही घाट के पीते हैं सारे. एक ही घाट का. ये आप ना कहें, कोई भी ना कहेगा जी
फलां बंदा फलां मज़हब का इतनी गालियां दे रहा, फलां का इतनी दे रहा। सारे के सारे एक ही जगह से आए हैं और सारे के सारे पाकिस्तानी हैं। बस इतना ज़हन में रखा करें कि वही अकीदे गंदम ये बदले हैं, खाते हैं। आदत नहीं बदली। बिल्कुल, जो जाहिल हैं वो तो जाहिल हैं ही हैं। ये बात निजाम साहब कल आपने अस्कानी साहब की सुनी है? असकानी साहब किधर, उनकी अपनी ब्राड पे? नहीं नहीं, हाँ। हसानी साहब की ब्राड के ऊपर। नहीं। वो जितनी भी आज तक चलती हैं ना, वो सब का नंबर ले गए हैं। माशाल्लाह। पता क्या है, आपस में गालियां निकाल लेना, इट्स ओके। बंदे जो हैं कई दफ़ा एक दूसरे से गुस्सा कर जाते हैं, ठीक है ना, कोई एक दूसरे के। अगर आप मज़हब की दुनिया में जाके अपने अकाबरीन को जाके गालियां पढ़वाएं, ठीक है ना, तो ऐसे बंदे को अलमा कहना या आलम कहना, ठीक है ना, वो किस रिकॉर्डिंग अगर मिली ना तो इनको सुनाना कि उन्होंने जाके तो एक बंदे को कितना प्रोवोक किया है। किसको? वो कश्मीरी को। अच्छा। वो इतना प्रोवोक किया बंदे को। वो उसके साथ सवारी थी, वो कहीं मेरे ख्याल बात नहीं कर सकता था, ठीक है ना। तो वो भी कल का जो दिन गुजर गया ना, हाँ। वो भी खतरनाक। अगर आपको कहीं से मिल जाए ना, कहीं आईडी हो, तो वो भी आप अक्सर अदालत लगाते हैं, तो वो भी आपको काफ़ी हद तक लोगों को बताने के लिए जो ये ब्लास्मी कार्ड लेके घूमते हैं ना कि फलां ने ब्लास्मी कर दी, फलां ने, उसी पैनल में ये बैठे होते हैं सबके ऊपर। ये जो अलामा साहब है ना, उस पैनल ब्लास्मी पैनल के सबसे ऊपर ये बैठे होते हैं। तो अगर वो कहीं आईडियो आपको मिल जाए तो वो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद है कि ये आपके पैनल के बंदे हैं और ये देखो। अच्छा प्यारे भाई, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि राना भाई आप मौजूद हैं? फिजान भाई आप भी मौजूद हैं? जी जी। फिजान भाई, जो उस दिन 2 दिन पहले की जो ये तिवाना भाई की ब्राड के ऊपर ये अहमदी भाई, वो क्या कहते हैं, कलीमुल्ला खेले थे, तो मैं ये सीसीडी पुलिस साहब से पूछना चाहता हूँ कि हमें भी कलीमुल्ला खेलने की इजाजत देंगे अपनी ब्राड पे? खेल रहा था, किधर खेल रहा था मुझे तो पता नहीं। यार ये तिवाना साहब की ब्राड के ऊपर हमारे एक ताहिर भाई हैं, वो बड़े इनोसेंट, बड़े मासूम बन रहे थे, और एक और कोई भाई थे, तो वो मुसलमान थे, यानी कि वो खुद को मुसलमान कह रहे थे, लेकिन वो वही अकीदे बयान कर रहे थे जो आपके हैं। तो तिवाना भाई उनको इजाजत दे रहे थे, तो मैं ये पूछ रहा हूँ तिवाना भाई को कि तिवाना भाई वो आपका ही ज़र्फ है या आप ही ऐसी इजाजत दे सकते हैं, कोई और अपनी ब्राड पे नहीं देता? ये बात तो ठीक है, रॉन्ग नंबर वही यार। मैं सिवाय गालियों के मेरे पास तो मैं तो सब इजाजत देता हूँ, सब करो। और गालियां भी अकाबरीन को मत दो, बाकी जिसको देनी है अच्छा दो। फिजान भाई, आपको भी शायद पता नहीं है, ब्रांड न्यू आज की खबर है, आज की खबर है, वो रायल साहब थे ना जो पप्पू ऑफिशियल के नाम से आते थे भाई, हाँ। तो वो माशाल्लाह उन्होंने जमात अहमदिया को छोड़ दिया है ना। तो आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है। माशाल्लाह। कितने आप बुलाए उनके और मैं मुझे तो पहले भी मुबारक दे चुका हूँ आप लोगों को ना। पीसीडी साहब, ये देखें कि मुझे इसी ब्रॉड पर अभी पता चला, अभी आपके सामने ही राहिल साहब का जिक्र हो रहा था, और अभी मेरे एजेंटों ने मुझे बताया कि माशाल्लाह मौलाना नज़ीर साहब ने कलमा पढ़वाने के बाद माशाल्लाह गालियां दिलवाई हैं, और कम से कम 8 से 10 बार दिलवाई हैं, क्योंकि वो बीच में सांस लेने रुक रहा था, कभी उसके गले में पढ़ा थूक रहे आ थे, गालियां जाता पढ़ा था। रहे थे, ये कहें ना। पढ़वा रहे थे, और 10 से 12 बार कि नहीं तुम अभी रुके, फिर से पढ़ो, तुमने अभी सांस ले रहे थे, फिर से पढ़ो, तुम पानी अभी पी लो। हिचकिचाए, फिर से पढ़ो। तो ये रॉन्ग नंबर साहब, ये माशाल्लाह इस्लाम में आने का तरीका निकाला है। मैं सुन नहीं पाया, आप कह रहे हो कि उनसे क्या करवाया था, वो राहिल से क्या करवाया इन्होंने? कलमा पढ़वाने के बाद गालियां पढ़वाई कुछ मखसूस लोगों को, स्पेसिफिक नाम लेके, और गाली पढ़वाते हुए वो बंदा जब हिचकिचा रहा था या देखिए, मैं एक बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इंसान होने के नाते मेरा भाइयों से क्वेश्चन है यार, जिस जमात में जो अकीदा इंसान का सारी जिंदगी रहता है, ठीक है, जो भी इंसान का, क्या जब भी इंसान को अल्लाह ताला हिदायत दे, यार कोई मसीह है, कोई हिंदू है, कोई यहूदी है, ठीक है, कोई मुल्हिद है, जब अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, इस्लाम की छतरी में आए,
तो क्या हमारे उलमा उससे पहले मसीह के अकायद पे लानतें डलवाते हैं? या हिंदू को कहते हैं दे कृष्णा को गालियां दे, लानता पांव फलाड़े। यार इंसान ने जिंदगी गुजारी होती है, इंसान को दुख भी हो सकता है, तकलीफ भी हो सकती है। और ये जो चीज ब्रांड न्यू यहाँ पे निकली है, टिकटॉक पे मैंने देखी है, उम्मत पे, यानी कि 1400 सालों में कहाँ क्या पहले ये हमें अपने अकाबरीन से बड़ों से ये चीज क्या मिलती है? तिवाना साहब या बल्कि फिजान भाई, आप तो आलमी दीन है, आप जरा बताएं ये लानत डलवाना कहाँ तक जायज है? और चलो हमने अल्लाह माफ करे एक बंदे से डलवा ली, तो क्या पूरी जमात अहमदिया कम्युनिटी की हम दिल आजारी नहीं करते टिकटॉक के ऊपर लाइव बैठ के? कोई भाई जो भी छोड़ता है जमात अहमदिया, मुसलमान होता है, ठीक है, इस्लाम के छतरी तले आता है, लेकिन पहले आते साथ ही हम उसको कहते हैं पहले तू गली काट। तो सिद्धांत भाई ये कहाँ तक ये जायज है? कुरान और हदीस से आप साबित बता सकते हैं? हमारी रहनुमाई फरमाएं जनाब। रॉन्ग नंबर किसी से ना, फैजान भी आप जवाब दीजिएगा। रॉन्ग नंबर में किसी से वो क्लिप मंगवा जिसमें आमिर नज़ीर जो है लगातार 10 से 12 बार गालियां पड़वा रहा है। नहीं, तुम रुके, तुम हिचकिचाए, तुमने सांस ली, तुमने ये लफ्ज़ क्यों तेज़ी से नहीं बोला, सही से बोलो, साहब क्यों लगा रहे हो, साहब हटाओ। इस तरीके देखो मैं आपकी बात पे मुझे मुझे 100% नफरत हो जाएगी। मुझे नहीं पता, रॉन्ग मैं नहीं नंबर मान तुझे सकता ये, नफरत हो क्योंकि जाएगी। जब मैं वहां पे बैठा हुआ था ना, एक और भाई कह रहे थे कि यार ये इतना मजबूर ना कर दें साकी को या राहील को, जो नया नया भी हुआ है, कि ये गालियां दे मिर्जा साहब को, यानी कि हम इनसे गालियां नहीं दिलवा रहे। तो आप तो टोटल 180 की डिग्री पे एक और बात करें, और मैंने वहां पे कुछ और सुना था। रॉन्ग नंबर, मैं तुझे कह रहा हूँ, नाम लेकर बोल रहे हैं यार, एक बार नहीं 10 से 12 बार। चले फिजान भाई को देने देना जवाब के, क्या ये जायज है इस्लाम में, या ये इंसान की तौहीन नहीं है? इतनी बार बोला है कि अफजल वड़ाइच ने मुझे डीएम करके बोला है कि आमिर नजीर बगैरती कर रहा है, बगैरत आदमी है ये। अच्छा, मुझे डीएम अच्छा अफजल वड़ाइच साहब ने आपको कहा है ये आमिर नजीर गलत कर रहा है? जी। लो जी, फिर हमारे साथ, अच्छा अब जो भी खत्म नबूवत का मुजाहिद मुझे या तिवाना को गालियां देगा ना, हमसे पहले वड़ाइच साहब को दे, क्योंकि वड़ाइच साहब ने ये चीज, वड़ाइच साहब को भी बुरी लगी है या उन्होंने कंडेम किया है इस चीज का। तो ये फिजान भाई आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी भाई आपका जो सवाल है वो बिल्कुल वैलिड है।